Hello, sir. So yes, Mr. Deepak, first of all, I would like to welcome you to the platform of Margdarshan and in Agyan batch. So Deepak, from where should we start? Sir, HR. Introduce yourself, Deepak, please. Okay, sir. Hello, sir. My name is Deepak Singh, and I am from Gazipur, Uttar Pradesh, where I have completed my 10th and 12th. I have completed my BTech in Chemical Engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, in 2020. Currently, I am pursuing my masters from IIT Hyderabad, and my topic, my project is like effect on forces due to change in chain length of polymer grafted nanoparticles. And my hobbies are like reading books and watching and playing cricket. Okay, so Deepak, how do you calculate the chain length of polymer? Sir, what we do, sir, mine is like only simulation based, so I'm working only theoretically. Still, there must be a formula to calculate the chain length. I know that. Don't you know? No, sir. No issues. Okay, so polymers basically, in polymers, may I know different types of polymers and how they are made? What are the polymers? Do you know? What are the methods? Yes. Like there will be so many polymers like polyethylene, polyvinyl chloride, and styrene butadiene, and there is two method. One is addition, and the other is condensation. Only two methods of production of polymer. Only two methods of production of polymers. So this is based on how we prepared the polymers, and so based on purity, there will be four methods. One is solvent, other is one is solvent, other is suspension, and sir, I'm not. I really. Bulk polymerization, solution polymerization. Go on. Okay, no issues. From which subject we should ask you the questions? Tell us that only. Mass transfer. That's great. So how can you differentiate mass transfer and heat transfer? Oh yeah, wait a minute. Can you tell us some examples where mass transfer is heavily used? Yes, sir. Distillation, extraction, absorption, stripping. Correct. So you said distillation. What are the type of distillation? Sir, one is like flash distillation, like differential distillation, and extractive distillation, pressure swing distillation. Let's say when we extract oil from deep ocean, it's crude oil. It's called as crude oil, and it's Yes, mixture sir. of everything when it comes to petrol, gasoline, diesel, kerosene. Then at the end of the day, we get the tar. So which type of distillation you think is done when it comes to crude oil processing? It's a simple distillation. Like you use trays to separate. Correct. So let's say in case the temperature difference of boiling, the boiling point is very nearby each other. For example, I think petrol and diesel are very nearby boiling point. What do we do in such case? What type of distillation do we use? Sir, if there is very less like temperature difference, then we'll look for like extractive distillation, or we can check their solubility if we can separate them by extraction. Isotropic distillation we will be using there, Deepak.
Yes, sir. Yes, now. What is isotropic distillation? Isotropic. Azeotropic distillation is used where the difference in boiling points are very close. Right? That's why you said that we will be using extraction. Okay. Okay. So no issues, just read that. Tell me, what is an azeotrope? सर जो जब कोई सॉल्यूशन लाइक राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो देयर इज टू टाइप्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो सर पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है कि जो प्रेशर ऑब्जर्व होता है वो आइडियल से ज्यादा होता है। अगर यही 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 सिनेरियो अगर बहुत ज्यादा डेविएट करता है लाइक जो ऑब्जर्व प्रेशर है तो वहां पे लाइक वो जो मिक्सचर वो एजोट्रॉप फॉर्म कर लेता है और वो इस लाइक कि वो वहां पे वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर की तरह बिहेव करता है लेकिन एक आफ्टर एक सर्टेन कंपोजिशन वो लाइक वो प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है कि वो दोनों एक साथ इवेपोरेट होने लगते हैं। Okay, so what are the different types of trays and what? Yes, tell me that only first. Sir, there is like 3 types of tray: valve tray, sieve tray, and bubble cap tray. Only 3 types? Sir, I only know about these 3. You know about 3 types, so you should not say that, sir, there are 3 types of trays. Right? Okay. So you must be knowing about Kremser equation. Okay. So what is the significance of? So first of all, write the equation and tell me what is the significance of Kremser equation. If you don't know Kremser equation, then no issues. Yes, sir. Sir, you use Kremser equation to like calculate the number of stages in the distillation column. Okay. So can you differentiate between number of stages and number of trays? Are they both different or are they both same? They are same, sir. Like we term as a tray or stage. Yes. Sir, I'm not able to recall the exactly equation. Okay, no issues, no issues. Okay, no issues. So you must be knowing about Finsky's equation, right? Yes, sir. So write Finsky's equation. Sir, it's tell about at total reflex the minimum number of trays required. Okay. It tells us about minimum number of trays. So you must write that. Okay, can you read that? ln xd into 1 minus xd into, yes. 1 minus xw upon xw upon ln average. ln alpha average. Okay, what does that alpha represent? Sir, relative volatility. Now what is relative volatility? Sir, it is a ratio of like more volatile component in vapor phase to the liquid phase to the less volatile component. How will you represent it mathematically? Sir, alpha is equal to Ya upon Xa is divided by Yv upon Xb. Now I need to write it in terms of partial pressure. Then, Sir, we can read in the like vapor pressure PA set upon PB set. okay. Now write PB. What is that? PA set upon PB set. Okay. Yes, okay. sir.
नाउ श्योर, नो इश्यूज विद दैट। ओके चलो, तो मुझे एक चीज बताओ आप, सपोज आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, ओके, यस सर। रिलेटिव वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, मतलब मान लो आपका ग्रेटर देन 1 है, ओके। इन दैट केस if I increase the temperature and pressure, if I increase Yes, the sir. temperature and pressure, so what will be its effect on the feed in distillation or in the more volatile component? मतलब feed पे नहीं, more volatile component मुझे बताइए सर किसी भी ट्रे पे मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का जो कंपोजिशन होगा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। यस सर। क्या आपको ग्राफ आता है, उसका ग्राफ बना के दिखा सकते हैं आप मुझे? सर मैकेथ के लिए और लाइक सर कौन सा प्लॉट कर रहा है, मैकेथ के लिए और लाइक और जो ओनली टीएक्स के लिए देख रहा हूँ। क्या कहा आपने? सर लाइक मुझे क्या बनाना है, टीएक्स डायग्राम और लाइक मैकेथ के लिए। Yes, PXY diagram, PXY diagram, not TXY, PXY. आपने ये पूछ लिया, हाँ, मैं वही जान रहा था कि आप पूछते हो कि नहीं पूछते हो, कौन सा डायग्राम बनाना है करके। ओके, ये आपने बना दिया, ठीक है, PXY डायग्राम दिख गया मुझे। अब कंपेयर करो P1, P2, P3 से ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये श्रिंक होते जाएगा, जो क्योंकि सर इसको हम अगर एक्स वाई पे प्लॉट करें तो ये ऐसे ही बनता है। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे सर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं उसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी डिक्रीज करते जाती है, क्योंकि सर जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों जो बॉइलिंग पॉइंट है और दोनों दोनों लाइक लिक्विड्स का वो बढ़ते जाता है। इसलिए सर जो वाई एक्स है वो सिर्फ डिक्रीज वो लाइक श्रिंक होते जाता है, इसलिए पक्का? अल्फा डिक्रीज करता है। यस सर। पक्का? ओके चलो बढ़िया। तो चलो आपने बॉइलिंग पॉइंट बोला, तो मुझे अब इसी वाले प्लॉट में आप मुझे बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट बताइए कहाँ पे है। सर पीएक्स डायग्राम में TXY में बनाइए आप, PXY में नहीं, TXY में बनाइए। मतलब इसमें भी बना सकते हो, PXY में भी बना सकते हो, बस इन वहां पे रिवर्स हो जाएगा वो, और कुछ नहीं होगा। यस सर। बनाइए TXY में बनाइए, इजी है। सर बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। यस, बनाया। यस सर। दिख नहीं रहा मुझे, ब्लर हो गया वो। एक मिनट। और सर नीचे ड्यू पॉइंट रहेगा, ऊपर बबल पॉइंट रहेगा। एक थोड़ा एक सर नीचे जो बोला पहले बना तो वही सही था सर, नीचे बबल पॉइंट है ऊपर ड्यू पॉइंट है। पक्का TXY डायग्राम है? Okay, ड्यू पॉइंट क्या होता है? कैन यू चलो ड्यू डिफाइन ड्यू पॉइंट बताओ पॉइंट? क्या होता है। जहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होता है सर। करेक्ट। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म। यस सर। यस, ग्रेट। ठीक है, करेक्ट है। सो वो किस पे डिपेंड करता है? गर्म? सर टेम्परेचर पे। अरे वो टेम्परेचर ही है, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? मतलब यस यू आर राइट, ओके फाइन। सो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? यू आर राइट। सर फीड के कंपोजिशन पे। अगर मैं किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के टर्म्स में पूछूं फिर
सर लाइक समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं आप, मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में सर ने कहा, जैसे डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, ओके, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड। अरे ड्यू पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट है मतलब। ओके फाइन। सो चलो कोई बात। प्रेशर पे डिपेंड करता है, लाइक यू नो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। सर ये टीएक्स वाई डायग्राम में क्या करते हैं, हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तब हम चेंज करते हैं टेम्परेचर को। आई एग्री, मैं एक जनरल पूछ रहा था, नॉट फॉर दिस डायग्राम। यस जय सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके, सो चलिए मुझे बताइए, अब इसमें आपने बबल पॉइंट बना दिया है ना, तो आप बबल पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड बबल पॉइंट? सर बॉइलिंग पॉइंट किसी एक प्योर सब्सटेंस के लिए होता है और जो बबल पॉइंट होता है कोई किसी मिक्सचर के लिए होता है। ग्रेट ग्रेट, ओके, तो चलिए सर, वी विल बी कंक्लूडिंग इट हिज इंटरव्यू हियर इटसेल्फ, ओके श्योर। सो दीपक, क्या फीडबैक दे आपको, बताइए। सर जो रियलिटी है वही। आपको फीडबैक डेली का देते हैं हम लोग, बट आप उस पर अमल नहीं करते। अमल तो करना सही भी है, तो बट आना चाहिए। रिलेटिव टू यस्टरडे यू आर एबल टू डिलीवर बेटर। आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज थोड़ी बेटर हो गई है, वी आर एबल टू गेट यू डेफिनेटली। मुझे लगता है थोड़ा टेक्निकल साइड आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। यू हैव टाइम, तो हो जाता है, ठीक है। 7 days आर मे बी गुड टू गो। एंड दीपक, आपको डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा ओवर थ्रू करिए, जाइए। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर का डिस्टिलेशन में पूछे, आपने कुछ भी सही से नहीं बताया और टाइम ले लिया। जब आपको क्रेमसर इक्वेशन नहीं आती थी तो सीधा बोल दिए थे, सर आई डोंट नो, आई डू नॉट रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ क्रेमसर, डू नॉट अटेम्प्ट टू राइट, व्हाई यू वेस्टिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, व्हाई यू वेस्टिंग, टेल मी दैट ना। सर मैं बस इसलिए फंस गया था कि मैं सोच रहा था कि उसको कैसे, अभी याद नहीं आ रहा था। सर फॉर्मूला याद है, जैसे कि जो टोटल होता है वो एब्जॉर्प्शन फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली। यस, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, सर चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है वो दीपक, सर आप थोड़ा सा वर्क करिए। कब है आपका इंटरव्यू, कब है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को? याद से आपके पास में एक हफ्ता है, एक हफ्ते में तो मैंने तो गेट के क्रैक कर लिया था एक हफ्ते में, है ना, तो यहाँ से इंटरव्यू भी निकल ही जाएगा एक हफ्ते के अंदर। बस मैं चाहूंगा कि थोड़ा डिस्टिलेशन वाला जो पार्ट है वो आप अच्छे से कर लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में पंप्स वाला पार्ट, हीट ट्रांसफर में हीट एक्सचेंजर वाला पार्ट, और बेसिक्स वाला पार्ट, है ना। हाँ, मीन्स ओनली हीट एंड मास ट्रांसफर से तुम्हारा इंटरव्यू नहीं चलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स तो पूछा ही नहीं, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में जाते तो फिर तो मैं तो उसमें हुई डीप में पूरा घुसने के लिए तैयार। सर भी है, सर थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर बोले तो सर फिर है ना। चलो तुम अटेंड करो इंटरव्यू, देखते हैं उसके बाद। श्योर, ठीक है। यस।